Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So we have already done something for you all, that we are giving you the lessons, the video lessons, obviously, for your examinations, for the school examinations, right, and for the Olympiad level education. So we are providing you this education for free, right? So what you can do is, you definitely can join us, you can watch these videos, all right, and you can definitely study with them. So it is very much good for you all, like you will be receiving all such information like the Olympiad level information and the school level information, right, at definitely in your home. So it would be very much beneficial for you all if you just come with us, join us, watch these videos, learn from that, and just crack your goals, whatever goals you have set for yourself, and whatever goals or targets you have set for your class, this year, right? So you can definitely crack them all if you just join us and study from us. So it would be very much beneficial for you all, right? So all you have to do is to sit and watch these lectures and study hard. That's it, all right? If you want any DPP and study material, you can definitely access them through our Telegram app. All you have to do is to go on the Telegram app, write this code TTB010, and you will be getting the DPPs and study material over there. So all you need to know is to join us on the Telegram app. That's it. You can see this is the whole team which will be helping you in clearing your exam. Right, so it is very much good for you all that this team will be helping you. So we are doing very much hard work for you all so that you can prepare for the school examinations as well as for the Olympiads level examination. So it is very good, right? Now let's talk about the things we have prepared for you. All right, let me tell you that कि हम लोगों ने उन बच्चों के लिए जो very much very much directed towards their goals हैं, and if they doesn't have any type of, you can say any type of let's say कि भाई किसी के पास कोई method नहीं है how they should study, right, what proper strategy they should follow, what books they should study, right? So this is the solutions for you all. If you are totally feeling directionless in your studies, you can definitely follow us, because what we will be providing you is that what I am going to tell you. So what is it? You have to go on this website. Let me do that again. You have to go on this website, www.talkingtextbooks.in. Over there you will be getting what? You will be getting two types of packages, right? These are the two types of packages, right? The one is the complete package, in which you will be getting the comprehensive study material at your doorstep, which is very important, because a proper structured material is a must if you want to start preparing for the examinations, right? So it is a must thing and everybody should have it, right? The second thing is you can get the homework submission feature. That means you are going to encourage to do the homework. You have to do the homework. You have to submit it regularly. So that means you should you will be studying for that, right? तो अगर आप homework करते हैं तो आपके मतलब आपके गोल के पास पहुंचने का जो आपका गैप है वो बहुत ही कम हो जाता है जस्ट बाय डूइंग होमवर्क. देखो कितना ज़्यादा ईजी है, राइट, अपने गोल्स को अचीव करना. नाउ यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस. स्टडी मटेरियल को एसेस करने के लिए, स्टडी मटेरियल को सप्लीमेंट करने के लिए, ऑल द वीडियो लेक्चर्स यू विल बी गेटिंग, either the recorded one, the live one, all you will be getting, so that you can go back on any topic, watch that and study that, right? So it is very much good. Next is the bi-weekly quizzes. You should definitely attempt the bi-weekly quizzes. How beneficial it is, because bi-weekly quizzes में आपको पता चलेगा कि आपने जो लेक्चर में सीखा है उसमें से आपने कितना गेन किया है, कितना नहीं. How much you know about any topic. You can definitely test yourself through the bi-weekly quizzes just twice a week. Right? You are going to do that twice a week. Now the next is periodic test papers. This is a must, because periodic test papers will give you the final taste of the examination. राइट, तो दैट मीन्स फाइनल एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कि वहाँ पे किस तरीके का लेवल है, हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है. तो इस तरीके की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी पीरियोडिक टेस्ट पेपर से. तो ओवरऑल दिस कंप्लीट पैकेज इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल द डायरेक्शनलेस स्टूडेंट्स ओवर देयर, जो कि स्टडी करना अभी तक स्टार्ट भी नहीं कर पाए हैं. ऑलराइट, सो दैट इज़ वेरी मच गुड. ठीक है, अब नेक्स्ट इज कि भाई यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये सेकेंड वाला जो है लेक्चर, दिस इज दी, यू कैन सी द टेस्ट सीरीज, राइट.
तो ऐसे बच्चे जो बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं बट दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स कि वो पूरे सभी बच्चों के साथ कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट सीरीज. बहुत बच्चे फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया हैव ऑलरेडी ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज. तो अगर आप compete करते हैं, अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो भी रैंकिंग आएगी दैट वुड बी फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया. So that means you are going to test, and this is a very much good way to test yourself, right? So and what you will be getting in this package, you will be getting periodic test papers, you will be getting live and recorded classes, and you will be getting bi-weekly quizzes. So this is a must, very good thing for you all, right? If you want to test yourself or either you want to study hard. So this is it. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 30% डिस्काउंट भी मिले इनमें से किसी भी पैकेज को बाय करने पर, you will be getting 30% discount only if you write this code CY Live. Alright, if you write this code CY Live, then you will be getting the 30% discount. Alright, so definitely all you have to do is to write CY Live, you will be getting 30% discount, join it and have all the features and do study hard. That's it, all you have to do is this only. If you have any query regarding the packages, regarding the features, regarding anything, how much you should study or how to join any package, you can definitely call us on this number. Alright, you can definitely call us on this number and we will be solving any query you have. Right, so this is very much important. Now let's talk about the next thing we are going to face, and that is the Ohm's law. We are going to study today the Ohm's law, right? So just take out your copies and books. Promise yourself that you will be watching the whole lecture. You will be making the proper notes and you will be revising it on a daily basis. You should make a revision schedule, just 15 minutes a day. That's it, all right? तो बस उतने में ही आपका जो है रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. एंड जब भी आप बाई वीकली क्विजेस को अटेम्प्ट करते हैं, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं, आपको क्या करना है, आपको पहले रिवीजन करना है एंड देन यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट. ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर तैयारी करनी है शुरुआत से ही, ताकि आपके फाइनल एग्जामिनेशंस और भी आपके लिए इजी हो जाए कवर अप करने के लिए, राइट? सो दिस इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यू मस्ट टेक. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. देखेंगे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ पढ़ने के लिए डेफिनेटली हमने अभी तक क्या सीखा है, वो ये कि आप लोगों ने जब भी ये चीज़ देखी कि एक कंडक्टर है, नॉर्मली एक कंडक्टर वायर है, राइट, और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं. ठीक है, फ्लो नहीं हो रहे हैं मतलब अ करंट इज नॉट देयर. जब सिर्फ एक वायर को हमने रखा हुआ है तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता नॉर्मली, राइट. जैसे ही हमने क्या किया, करंट के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया. एक एंड को हमने हाई पोटेंशियल पे रख दिया, एक एंड को हमने लो पोटेंशियल पे रख दिया. तो जब ये काम हमने किया तो हमने दो एंड्स पे, उसी कंडक्टर के दो एंड्स पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया और इसी की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे उसी कंडक्टर में से एंड क्या होने लगा, करंट फ्लो होने लगा उसी कंडक्टर में से, राइट. तो आप लोग ये बोलेंगे कि देयर इज अ नीड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इफ वी वांट टू हैव अ करंट. ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर हमें करंट फ्लो करवाना है, सो वी मस्ट क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, राइट. फिर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम. इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया कि भाई ये बात चलो सबको पता चल गई है कि करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी है, राइट. ये बात तो सबको पता चली, लेकिन क्या होगा जब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाते जाएंगे. लेट्स से हम इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो करंट का क्या होगा, क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, या फिर वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो ये स्टडी किसने किया, जॉर्ज साइमन ओम ने स्टडी किया और उन्होंने ही जो है बहुत स्टडी करके करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन निकाला. ठीक है, कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, और उसी लॉ को हमने क्या लॉ बोलते हैं, उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ. ठीक है, बिकॉज इन्होंने वो जो लॉ है बनाया है, इन्होंने स्टडी करा है, ऑब्जर्व करा है, तो दैट्स व्हाई द नेम इज ओम्स लॉ. ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे ये बना है. ठीक है, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस,
इन्होंने ये बताया कि भाई जब कभी भी करंट को हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि डिक्रीज होने पे क्या होता है, तो जब उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज किया तो उन्होंने ये देखा कि करंट भी डिक्रीज होते जा रहा है। तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में, द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इस ओम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है इट स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the temperature and other physical conditions remains unchanged। तो इसका मतलब कि जब कभी भी एक कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होती, जैसे कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, राइट, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर को यानी कंडक्टर के टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया, उसका जो भी टेम्परेचर था कांस्टेंट रखा गया, उसका जो भी अदर फिजिकल कंडीशंस थी लाइक मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सब हम लोगों ने कांस्टेंट रखी। और कांस्टेंट रखने के बाद जब हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकाला, सो वी गॉट कि भाई इन दोनों के बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये दोनों ही चीज़ें हम लोग इजीली लिख सकते हैं, बिकॉज अगर करंट इंक्रीज होता है तो दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। सो दीज आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फटाफट से स्टेटमेंट को नोट आउट कर लेना है, बिकॉज स्टेटमेंट आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस में, 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ऑलराइट। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। चलो तो अब हम देखते हैं आगे कि जब इस रिलेशन को बनाया गया तो एक नई क्वांटिटी बाहर आई। लेट्स टॉक अबाउट दैट क्वांटिटी कि वो क्वांटिटी क्या है, हम उसको क्या बोलते हैं, किस तरीके से वो आई, उसका क्या वैल्यू है, ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स देखेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, राइट। अब हम देखेंगे कि जब कभी भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाया जाता है और इक्वल टू का साइन लगाया जाता है तो वहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो जब कभी भी मैं कुछ इस तरीके से इक्वल टू के साइन में बदलूंगी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं कैपिटल R, ठीक है। उस कैपिटल R से शो करते हैं हम उसे, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक नाम देंगे। पहले तो हम बाकी सारी गिवन चीज़ें लिख देते हैं कि भाई जो पोटेंशियल होता है V, तो मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलराइट। जो I है दिस शोज द करंट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट उस कंडक्टर के अंदर जो करंट आ रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द R जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे हम इसे, जिसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो मतलब ये जो कैपिटल R है वो किसको शो कर रहा है, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। नाउ व्हाट इज इट, क्या होता है ये रेजिस्टेंस, क्या इफेक्ट होता है इसका, क्या इसका वैल्यू हर किसी के लिए कांस्टेंट रहता है या फिर सभी चीज़ों के लिए कांस्टेंट रहता है या फिर कॉपर के लिए डिफरेंट, एल्यूमिनियम के लिए डिफरेंट, ऐसा रहता है। तो इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जो रिलेशन देख रहे हैं, इसकी हम कुछ बात करते हैं कि भाई ये रिलेशन कब कब बदलेगा, क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखेंगे 3 तरीके से हम लोग इस रिलेशन को देख सकते हैं। नंबर 1, जब V को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। जब हम V को कांस्टेंट कर दें और देखें कि भाई क्या होता है रेजिस्टेंस और I के बीच में क्या रिलेशन होता है,
ये एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो v बराबर जब कांस्टेंट रखा गया ऑब्जर्वेशन के टाइम में, एक्सपेरिमेंट के टाइम में, तो तब क्या हमें पता चला दैट v तो हो गया कांस्टेंट। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो आई वुड बी राइटिंग v अपॉन r इक्वल्स टू i। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। किसके केस में? जब कभी भी v कांस्टेंट होगा, ठीक है। जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने कांस्टेंट रख दिया तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड रेजिस्टेंस? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट विल डिक्रीज, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट विल इंक्रीज। तो इन दोनों का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा दैट इज शोइंग अस कि भाई जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है तो करंट कम होता है, राइट। एंड जब कभी भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो करंट भी कम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब करंट कांस्टेंट हो जाए तब क्या होता है। जब हम करंट को कांस्टेंट बोलेंगे या फिर हमने एक कांस्टेंट वैल्यू उसको दे दी, राइट, सो व्हाट विल बी कि भाई v इक्वल्स टू आई, r के रिलेशन से ये कांस्टेंट है और इक्वल टू के साइन में इट विल कन्वर्ट इनटू दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये एक रिलेशन हम बोल सकते हैं ओनली व्हेन जब करंट कांस्टेंट है, ठीक है। जब करंट कांस्टेंट है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस ओनली व्हेन करंट इज कांस्टेंट, राइट। अब हम देखते हैं वो केस जब हम क्या कर रहे हैं। ये तो हम लोग को ओम्स लॉ से पता ही है कि भाई जब r बराबर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आई, r से जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i हो जाएगा। सो दिस इज टोटली नोन, ठीक है, ये कंडीशन हमें पता है। बट ये जो है कंडीशन, ये नई कंडीशंस हैं जो पता होनी चाहिए कि जब कभी भी v कांस्टेंट होता है तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जब कभी भी i कांस्टेंट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन सबको नोट कर लेंगे, बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये हम लोग को बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं एंड वी जस्ट टॉक अबाउट द ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ खींचें, ठीक है, लाइक करंट को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करें, तो जो ऑब्जर्वेशंस किए गए, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनसे हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिले, दैट वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू सम एंगल, डेफिनेटली ये एक इंक्लाइंड लाइन है, राइट, इन बट इंक्लाइंड एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये चीज हमको ऑब्जर्वेशन हुई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है, इसका स्लोप जो है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो हम लोगों को पता है हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, ठीक है। तो स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल बी गेटिंग इज चेंज इन वाई एक्सिस, ठीक है, लेट मी राइट दैट अगेन, यहां पर लिखते हैं, ठीक है। स्लोप इक्वल्स टू हमें क्या मिलना चाहिए, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस।
नाउ यू नो भाई कि भाई जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हमने क्या प्लॉट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग इसमें सीधे लिखेंगे दैट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और हमने जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है वो हमने क्या प्लॉट किया है, करंट। एंड वी ऑल नो भाई, हमको पता है कि जो V अपॉन आई है ये हमें क्या मिलता है, V अपॉन आई हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो दैट मीन्स अगर ये कभी भी ग्राफ आपको मिलता है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका जो स्लोप है, राइट, दैट वुड गिव यू द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको अगर रेजिस्टेंस पता करना है इस ग्राफ से, व्हाट यू हैव टू डू इज टू जस्ट कैलकुलेट द स्लोप, ठीक है। आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन दिखाएंगी, क्यों, बिकॉज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब कभी भी ऐसा होता है, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। दैट्स वाई हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हम हमेशा जो है वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, बिकॉज दिस स्ट्रेट लाइन शोज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको जो है वो स्ट्रेट लाइन शो करती है, दैट्स वाई वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। एंड इसका जो स्लोप होगा that will give you what, the resistance, ठीक है। तो that's how we are going to calculate the resistance from a potential difference and current graph. That means it is called the VI graph, है ना। चलिए, तो अब हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ क्या होता है। मतलब एक्सपेरिमेंटल किस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं दैट दिस लॉ इज ट्रू और नॉट, ठीक है। ये बात हम लोगों को सिखा दी गई, भाई साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया दिस इज ट्रू, उन्होंने कर लिया एक्सपेरिमेंट, दे टोल्ड अस, हमने उसको रिमेंबर कर लिया, दिस शुड नॉट बी द केस। सो हाउ वी शुड गेट कि भाई वो जो बोल रहे हैं वो ट्रुथ है या नहीं, that's why we are going to verify that, ठीक है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग सीधे सीधे सिंपली देखेंगे, आप लोग डेफिनेटली वेरीफाई कर सकते हैं अपने स्कूल लैब्स में, इट इज सो मच ईजी फॉर यू, राइट। तो दैट मीन्स हम लोग को क्या चाहिए, सर्किट बनाने के लिए, जब हम जो प्रॉपर सर्किट देख रहे हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने ओम्स लॉ को स्टडी किया था, राइट, एट दैट टाइम जब ओम्स लॉ थे, मतलब जब ओम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब लॉ बनाया, उस टाइम पर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या उन्होंने सर्किट बनाया, वही सर्किट हम लोग बनाते हैं। सो व्हाट द थिंग्स यू विल बी नीडिंग टू मेक दैट सर्किट इज, यू विल बी नीडिंग अ सेटअप, जिसको हम करने वाले हैं अभी सर्किट में। नंबर वन, व्हाट यू विल बी रीडिंग अ वायर, ठीक है, दिस इज द वायर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। दिस इज अ पीस ऑफ वायर ए बी, जो कि जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट करेंगे दैट उसके अंदर से करंट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये सब, ठीक है। सो अ वायर ए बी इज अ नेसेसरी थिंग। नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, दैट मीन्स वी आर नीडिंग अन अमीटर, ठीक है। हमें एक अमीटर चाहिए और हमें पता है अमीटर क्या करता है, अमीटर मेजर करता है करंट को, ठीक है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए वो चाहिए हमें वोल्ट मीटर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि दिस इज दी वोल्ट मीटर, और ये हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, ये बात तो हमको पता है। सो हमने इसे ए बी वायर के बिल्कुल पैरेलल में जोड़ दिया है, ठीक है, हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। और एमीटर को हमने क्या किया है, सीरीज में ज्वाइन किया है, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज हमको चाहिए वो चाहिए कुछ सेल्स, ठीक है, और हर एक सेल का कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। जस्ट लाइक 2 वोल्ट का अगर हम लोग सेल यूज कर रहे हैं तो सभी सेल्स 2 वोल्ट के होने चाहिए, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो अभी आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, जब कभी भी आप इस तरीके के सर्किट को बनाएंगे तो क्या करना है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एमीटर का पॉजिटिव जो है, एमीटर के भी 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्ट मीटर के भी 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एमीटर का जो पॉजिटिव होता है दैट शुड बी कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, राइट। उसी तरीके से जो एमीटर का नेगेटिव होता है दैट शुड बी कनेक्टेड टू दी
नेगेटिव ऑफ द बैटरी। ठीक है, इसी तरीके से जो वोल्ट मीटर है उसका पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द टर्मिनल, और जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव है दैट शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव ऑफ द एमीटर और वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये चीज हमको रिमेंबर करनी है, ध्यान में रखनी है। चलिए, अब हम लोगों ने क्या किया, सर्किट प्रिपेयर कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें ऑब्जर्वेशंस क्या करने हैं। ऑब्जर्वेशन में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम वन सेल यूज करेंगे। ठीक है, इंस्टीड ऑफ दिस बैटरी, इस बैटरी की जगह पर हम वन सेल यूज करेंगे। ठीक है, और देखेंगे, उसको नोट आउट कर लेंगे कि भाई करंट कितना, हम लोग इस एमीटर से करंट मेजर कर लेंगे और इस वोल्ट मीटर से वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर लेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग नोट आउट कर लेंगे जब हमने सिर्फ वन सेल को यूज किया है। अब धीरे धीरे हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि उसके बाद जब हम लोग रीडिंग्स ले लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन हटाएंगे, पूरा नहीं, सिर्फ इस बैटरी का स्विच को ऑफ करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सेल ऐड करेंगे एंड देन अगेन स्विच ऑन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई जब दो सेल्स को ज्वाइन कर दिया, यानी हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को ट्वाइस कर दिया, बैटरी को है ना वो ट्वाइस कर दिया, तब क्या है, तब एमीटर में कितना आ रहा है वैल्यू करंट का, वोल्ट मीटर में कितना आ रहा है वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हमने उसको स्टडी किया। उसके बाद हमने क्या किया, स्विच हटाया और फिर क्या किया, एक और सेल को ज्वाइन किया, तो अब 3 सेल्स हो गए, मतलब हमने पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको थ्राइस कर दिया। ठीक है, तब हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि भाई इस करंट में क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या वैल्यू में ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग उसको धीरे धीरे पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से कि भाई करंट जो है, जब हमने फर्स्ट सेल लगाया तब उस वक्त लेट्स से कि भाई आई करंट आ रहा है। ठीक है, आई आ रहा है और लेट्स से वी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, जैसे जैसे हमें क्या करने हैं, रिपीट करते जाना है दिस एक्सपेरिमेंट विद द 2 सेल्स, विद द 3 सेल्स, विद द 4 सेल्स। ठीक है, कम से कम 5 सेल तक तो हमको इसको रिपीट करना है। ठीक है, आफ्टर दैट जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी हम क्या करेंगे, उन सभी जो वैल्यूज हमको मिलेगी उसको फटाफट से कलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल बी मेकिंग अ ग्राफ फ्रॉम देम। ठीक है, हमको लेकिन उस वक्त ऑब्जर्वेशन में जब हमने ड्रॉ किया, ठीक है, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया उन दोनों वैल्यूज का, तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, दैट एवरी सिंगल टाइम हम अगर ट्वाइस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का तो करंट भी ट्वाइस हो जाता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को थ्राइस कर रहे हैं तो करंट भी थ्राइस हो जाता है। So that's how all the values are changing in the directly proportional relation. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीजें हो रही हैं। ठीक है, जब हमने 3 सेल्स को कनेक्ट किया so we get 3I and potential difference 3V, मतलब thrice of the current and the thrice of the potential difference, right? तो ये जो हमने जब ग्राफ प्लॉट किया, जब हमें I का वैल्यू मिला 2I मिला, इसी तरीके से 2 वोल्ट मिला, 3I तो 3 वोल्ट, 4I देन 4 वोल्ट, तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्लोप के लिए कैलकुलेशंस, वी विल बी गेटिंग स्लोप इक्वल्स टू, इफ वी नो द थीटा, तो हम लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन डायरेक्टली राइट द सिंबल्स, it's not necessary to write the whole thing again and again, so we can write V upon I, so that's we will be getting the R. So the value of resistance जो कि constant आती है, because this line is a straight line and this is the observation we get whenever we plot the graph between potential difference and the current, right? So we get a straight line and we get the resistance which is totally constant because this is a straight line, right? So इसका slope जो है वो constant है and that's what we get, right? Now let's talk about the electrical resistance. क्या होता है electrical resistance? ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, मतलब जो R है जिसके बारे में हम इतना गा रहे थे वो क्या होता है। ठीक है, how should we calculate और how what is the formula और how what is the even the definition कि भाई एक्चुअल में क्या होता है। So देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है, इस जो आप देख रहे हैं, पहले ही मैं आपको बताती हूँ, अभी देखेंगे ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब एक तरफ मूव करने लग गए बिकॉज हमने ऑन कर दिया है स्विच। देख रहे हैं आपको चेंज दिखाई देगा,
देखेंगे द स्विच इज ऑन राइट नाउ और एम्पियर से एमीटर से पता चल रहा है देयर इज अ करंट, राइट। लेकिन अभी देखना ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, रैंडम मूव करते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हटा देते हैं, स्विच हटा देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ऑन किया, दे आर मूविंग एक्चुअली, राइट, बट इन अ फिक्स डायरेक्शन, सभी के सभी मूव कर रहे हैं। एक और ऑब्जर्वेशन वाली चीज आपको जो यहाँ पे देखनी है वो ये कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत तेजी से नहीं जा रहे हैं, है ना, मतलब जितना इनका स्पीड है उस स्पीड से तो नहीं जा रहे हैं। और आपको ये बात पता है कि भाई जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे ही छत पे लगा हुआ जो बल्ब है वो जल जाता है, राइट। स्विच ऑन तो हमने दीवार पे एक छोटे डिस्टेंस से किया, राइट, स्विच ऑन करते ही ऊपर लगा हुआ बल्ब जल जाता है। तो मतलब कनेक्शन, वहां तक करंट जाने के लिए जो कनेक्शन बना हुआ है उससे बहुत ही तेज स्पीड में करंट जाता है, सही बात है, राइट। लेकिन ये तो बहुत ही स्लो जा रहे हैं, टकरा टकरा के जा रहे हैं, टकरा टकरा के जा रहे हैं, ठीक है। इनका भी जो स्पीड है वो किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट लाइट का स्पीड के इक्वल होता है, जो करंट का स्पीड होता है, ठीक है। तो वो भी लाइट के इक्वल होता है, दैट मीन्स दिस इज वेरी 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 फास्ट, ठीक है। मतलब लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸, है ना। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है। दिस इज जस्ट एंड वी कैन से एक ऐसी चीज जिसके के थ्रू हम बता सके कि भाई इस तरीके से मूवमेंट होता है इन अ कंडक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये देख पा रहे हैं ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ऑलरेडी हमने क्या किया, इसको इसके जो दोनों एंड्स हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। सो क्या ऐसा होता है, क्या चीज़ ये रेजिस्टेंस होती है, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे ब्लू कलर के जो जा रहे हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे हैं। और जो ब्लैक कलर के आप देख पा रहे हैं, दीज आर द अदर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट फ्री, ठीक है, फ्री नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते, वो अपने प्लेस पे स्टेबल हैं, लाइक द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये जो भी हैं वो ग्रे कलर के हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप यहाँ क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या होता है, ये इन सब ब्लैक जो अदर एटम्स, अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराते हैं, ठीक है, उनसे कोलाइड करते हैं। तो जिसकी वजह से इनका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इनको एक अपोजिशन मिल गया कि वो आगे जाना चाहते थे, ठीक है, उनको आगे जाने पे जो है मजबूर करा जा रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो दे आर मूविंग, ठीक है। अब वो मूव कर रहे हैं, बट ये जो कोलिजन उनके बीच में हो रहा है उसकी वजह से इनके मोशन में एक रुकावट पैदा हो रही है, ठीक है। एक तरीके से ये ऑब्स्टेकल्स हैं जो कोलिजन की वजह से इनकी स्पीड को कम कर देते हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। लाइक कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये मूव करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू द कोलिजन, राइट। तो एक तरीके से ये उनको रोकने की ही कोशिश है कि वो इलेक्ट्रॉन्स ना जाएं, एंड यही कोशिश को, ये जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी को ही हम एबिलिटी बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मूव करने देना, इसकी जो एबिलिटी होती है दैट इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। देखेंगे व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट, दे कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड विद द एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। क्या करते हैं, जब ये भी मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, एटम से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, ड्यू टू दीज कोलिजन्स, इन कोलिजन्स की वजह से देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन। इन्हीं कोलिजन्स की वजह से उनका जो मोशन है उसमें रुकावट पैदा होती है, बिल्कुल सही बात है। opposition to the flow of electrons through the conductor, so they are very much, you can say very much opposed, उनका जो मोशन है उसको अपोज किया जाता है। and who is the factor behind this opposition, the resistance. Now let's talk about the definition of the resistance. क्या है, the property of a conductor due to which it opposes the flow of the current through it is called resistance. मतलब ये हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है और जिसकी वजह से ये अपने अंदर से जो करंट जा रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर से इजीली करंट फ्लो हो जाता है,
दैट मीन्स वहां पर ये रेजिस्टेंस कम होगा। बिल्कुल सही बात है, तभी तो इजीली जो है करंट फ्लो हो जाता है। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो वहां पर क्या होगा, वहां पे जो करंट है वो बहुत ही मुश्किल से फ्लो हो पाएगा। बिल्कुल बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अगर इंसुलेटर्स है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना। तो ये फैक्टर ऐसा है, ये प्रॉपर्टी कंडक्टर की ऐसी है जिसकी वजह से उसके अंदर से, उस बॉडी के अंदर से, उस कंडक्टर या फिर उस मटेरियल के अंदर से करंट जा पाता है या नहीं जा पाता, ये कौन डिसाइड करेगा? दिस प्रॉपर्टी, ये रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। ठीक है, और इसी की वजह से हमने रेजिस्टेंस की वजह से ही जो है हम लोगों ने ये बताया हुआ है कि हम लोगों ने मटेरियल्स को डिसाइड किया हुआ है दैट दिस मटेरियल इज कंडक्टर बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, मतलब जो भी हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हुए हैं सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया हुआ है, उनको हम लोग देखेंगे आगे कि रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जैसा कि हम लोग स्लोप से देखा था, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट विल गिव यू द रेजिस्टेंस, राइट। तो ये चीजें जो है आपको पता चलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की? अब देखो, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस लॉ को निकाला है, ठीक है, बनाया है, तो वो उनका नाम है, उन्हीं के नाम पर इसका जो यूनिट है उसको बताया गया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, तो दिस इज ओम। इस सिंबल से जो है हम लोग शो करते हैं ओम को। ठीक है, इस सिंबल से हम लोग शो करते हैं। सो दैट्स हाउ द सिंबल इज शोइंग, राइट। तो ये है एसआई यूनिट। और आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? देखेंगे ये रेजिस्टेंस, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं V अपॉन आई। तो यू कैन से V अपॉन एमीटर, यानी कि V एम्पियर इनवर्स इज इक्वल्स टू ओम। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स हैं हम लोग डेफिनेटली बता सकते हैं। ठीक है, वी कैन डेफिनेटली शो दैट कि भाई जो ओम है वो क्या होता है, दैट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय द एम्पियर, राइट। हम लोग ये डेफिनेटली बता सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ 1 ओम। 1 ओम का वैल्यू कितना होगा? यू कैन डेफिनेटली से दैट डेफिनेशन ऑफ 1 ओम क्या बोलता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का करंट जो है अप्लाई किया गया, तब जो रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी 1 ओम। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं कि भाई 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, तो जब कभी भी किसी कंडक्टर पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और 1 एम्पियर का करंट उसके कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो, तो दैट मीन्स वहां पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट। सो नाउ यू हैव टू नोट इट डाउन वेरी फास्ट, क्विकली आप जो है इसको नोट करेंगे। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसी रेजिस्टेंस के बेसिस पर हमने 3 तरीके से जो मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, डिपेंड करता है कि भाई रेजिस्टेंस कितना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज कैटेगरीज। नंबर 1 इज कंडक्टर्स। ठीक है, जो है वो कंडक्टर्स की कैटेगरी है। ठीक है, दिस इज द कंडक्टर्स की कैटेगरी एंड इसमें लिखा है दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। दैट मीन्स कि भाई अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, करंट इजीली उसके अंदर से फ्लो हो सकता है, तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी है रेजिस्टर्स। ठीक है, देखेंगे
this is the resistors. Those substances which have comparatively high electrical resistance are called resistors. ठीक है, जो कंडक्टर्स हैं उनसे थोड़ा सा हाई इनका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टर्स बोल देते हैं. नंबर थर्ड, दैट इज insulators, right? Those substances which have infinitely high electrical resistance, this is R, ठीक है, ये R है. Resistance are called insulators, मतलब इनका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है. जस्ट लाइक वुड, जैसे वुड होता है, राइट, वुड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, तो इसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली हाई है, ठीक है, तो वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता. सो दिस इज द रीजन कि भाई हम लोगों ने 3 कैटेगरी में इनको बांटा है. सबसे पहली जो कंडक्टर्स है उसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, उससे ज़्यादा कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वालों को हम बोलते हैं रेजिस्टर्स, और उसके बाद जिनका इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होता है उसको हमने बोल दिया है इंसुलेटर्स. ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनकी बात करते हैं कि भाई जो कंडक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है. देखेंगे, दो सब्सटेंसेस विच है वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उनको तो हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं. देखेंगे आगे, कंडक्टर अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट ईजिली, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम है तो डेफिनेट सी बात है कि ईजिली उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन ही नहीं है तो दैट मीन्स ईजिली हम लोग फ्लो हो सकते हैं, राइट, हम लोग नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और करंट, राइट. सो डेफिनेटली सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर सबसे अच्छा जो है कंडक्टर है, बट हम उसको यूज नहीं कर सकते वायर्स में एंड ऑल बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली. दैट्स वाई हम लोग जो है उसके जगह पर हम कॉपर या फिर एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं. वो भी काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स हैं, बट वो सिल्वर के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं, बट दे आर गुड. दैट्स वाई हमारे घर में जितने भी वायर्स हैं उन सभी में जो है कंडक्टर यूज जो होता है वो है कॉपर और एल्यूमिनियम. ठीक है, तो उसी के वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट एफिशिएंसी. अब आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो डेफिनेटली कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड दे आर चीप, राइट. सो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. दैट्स वाई वी मेड दैम एज आर वी यूज दैम इन द इलेक्ट्रिकल वायर्स. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंसुलेटर्स. second one, that is resistors, right. Now let's talk about that. ऐसे substances जिनका थोड़ा सा high resistance होता है comparative to the conductors, तो उनको हम क्या बोलते हैं, resistors बोलते हैं, right. नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखने वाले होते हैं कि ऐसे alloys मतलब 2-3 metals को जो है मिला दिया तो that becomes an alloy. तो ऐसे कुछ alloys हैं जैसे कि नाइक्रोम, आप देख सकते हैं, दिस इज द वायर ऑफ नाइक्रोम. ठीक है, मैंगनीन, दिस इज द वायर ऑफ द मैंगनीन, एंड कॉन्स्टेंटिन, दैट इज द वायर ऑफ द कॉन्स्टेंट, जिसको हम यूरेका भी कह देते हैं. ठीक है, कॉन्स्टेंटिन को हम यूरेका भी कह देते हैं. ऑल हैव क्वाइट हाई रेजिस्टेंस, हल्का सा ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू द कंडक्टर्स. सो दे आर यूज टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. तो इन मेटल्स को ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा हमको रेजिस्टेंस चाहिए. ठीक है, तो उन जगह पर हम इन मेटल्स को, इन अलॉयज को यूज़ करते हैं. ठीक है, देखेंगे जो रेजिस्टेंस होता है जनरली उसका काम क्या होता है कि वो सर्किट के अंदर को करंट है ना उसको डिक्रीज कर देता है. तो अगर कम करंट चाहिए किसी सर्किट में, मान लीजिए हम अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हमें कम करंट चाहिए, तो दैट मीन्स हमको क्या करना है, एक रेजिस्टर को ऐड कर देना है. दैट्स इट, ऑल वी हैव टू डू इज दिस. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू आर यूज्ड टू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंसुलेटर्स. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल, इनफाइनेटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर्स बोल देते हैं. ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो इंसुलेटर होता है डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी जाने नहीं देता. ठीक है, ये काम होता है इंसुलेटर्स का. ठीक है, रबर इज एन एक्सेलेंट इंसुलेटर, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके के रबर के ग्लव्स पहनते हैं ताकि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाए. ठीक है, सो दे आर सेफ. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रीशियंस हैंड ग्लव्स, रबर के हैंड ग्लव्स को जो है वेयर करते हैं जब वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे होते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है एंड इट्स सेफ फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक्स. ठीक है,
सो दीज आर ऑल द थिंग्स। और वुड भी बहुत अच्छा जो है वो इंसुलेटर है, हम लोगों ने देखा। सो दिस वॉज ऑल इन दिस लेक्चर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज द सी सेक्शन, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको इसी सी सेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं, दैट इज द होमवर्क। ठीक है, सी सेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करो, आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करना शुरू करो, चेक पॉइंट सी को सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तो नेसेसरी हैं, and that's your homework for today. But do not forget to like the video. You can definitely subscribe the video, not the subscribe the channel, right? And definitely you can share the video. That's for you all, right? And आपको क्या करना है, सभी बच्चों को इसको फॉरवर्ड करना है ताकि क्या हो सके, आप लोग भी पढ़ सके और वो बच्चे जो नहीं, जो डायरेक्शन लेस हैं या फिर जिन्हें अच्छा मटेरियल नहीं मिलता, दे कैन स्टडी फ्रॉम हेयर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।